Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to make the concluding part for ICSE Specimen Paper Mathematics Class 10 2023-24. My previous video abruptly got ended due to the power failure, so sorry for it, and today I am going to make the concluding part. Starting from question number 7 today, first part is from coordinate geometry, the line segment joining AB. This is AB. A 2 minus 3 and B minus 3 2. These are the coordinates. Line segment joining AB is intercepted by the x-axis at point M at this point and y-axis at point N at this point. PQ is perpendicular to AB. This is PQ and it is perpendicular to AB. It means this angle is 90 degree. And meets the y-axis at a distance of 6 units from the origin. Y-axis 6 units from the origin shown in the diagram, and this point is S. Find the coordinates of M and N. In A part, we just need to find the coordinates of M and N. So coordinates of M are M on x-axis. So on x-axis, its point is -1 and y point is 0 here. So coordinates are -1 and 0. Similarly, for N on y-axis, lie on y-axis. So y on y-axis, x point is 0, abscissa is 0, -1 is the point of y only. So points are 0 and -1, abscissa and ordinate. In B point, coordinates of S is the point where this line touches the y-axis. PQ line touches the y-axis 6 units from the origin. So 6. This is 6, but this is point of y-axis. So x-axis is 0 here. So S point is 0 and then 6. 0 and 6. In C part, slope of AB. Slope of AB. This is AB and coordinates of AB are A is 2 and -3 and B is -3 and 2. So slope of AB, we know the formula y2 minus y1. So this is x1 y1 and this is x2 y2. For your reference, you can write with the pencil on the top of these coordinates. So y2 minus y1, 2 minus -3 upon x2 minus x1, -3 minus 2. So 2 plus 3 and upon -5. So 5 upon -5, it means -1. So slope of this line is -1. Now last and important part of this question is part number D. We need to find the equation of line PQ. This line equation we need to find. So first of all, we will find the slope of this line PQ with the help of slope of the given line AB. तो इसके स्लोप के लिए हमारे पास स्लोप कितनी आ जाएगी? स्लोप ऑफ PQ हमें पता है कि वो उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल हमें क्वेश्चन में दिया गया. स्लोप ऑफ PQ इज कितना हो जाएगा? जितने ये स्लोप है माइनस लगा के इसी का रेसिप्रोकल 1 अपॉन -1, तो कितना आ जाएगा? 1. इट मींस PQ की स्लोप कितनी आ गई? 1 आ गई. अब PQ का कोई एक पॉइंट हमें चाहिए इसकी इक्वेशन निकालने के लिए. तो वो पास कहां से कर रहा है? इस S पॉइंट से कर रहा है और इस S के हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले थे 0 और 6 है. नाउ एनी लाइन हैविंग स्लोप दिस और पॉइंट हमारा आ रहा है S यानी कि 0 6. तो इससे जो लाइन जाएगी, अब हम पॉइंट का इक्वेशन ऑफ लाइन हमें मालूम है. क्या फॉर्मूला होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1. सो y माइनस y1. अब हम इसमें y1 इसको लेंगे. y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप हमारे पास अभी आई है 1 x माइनस x1. सो इट मीन्स y माइनस 6 इज इक्वल टू x. y माइनस 6 इज इक्वल टू x आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर आप x की साइड में y को ले जाइए. x minus y is equal to -6 या +6 is equal to 0. This is the equation of this line PQ, which is our part number D. This question is of 5 marks. So obviously last part is of 2 marks and 1 1 1. Second part of this question is from chapter height and distance. The angle of depression of two ships A and B on opposite sides of a lighthouse of height 100 meter are respectively 42 degree and 54 डिग्री. These are angles of depression. तो अगर यहाँ 42 है तो यहाँ पर भी 42 होगा, 54 है तो यहाँ पर भी 54 होगा. The line joining the two ships passes through the foot of the lighthouse. Find the distance between the two ships A and B. Total distance we need to calculate. तो हम assumption कर लेंगे कि let this point is D and this distance is मतलब of ship A
from foot of lighthouse is x, and on this side this is y. It means db is y. So lighthouse से हमने सारे डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने हैं, और दूसरा ये दोनों बेस डिस्टेंस लास्ट में हमने प्लस कर देना है क्योंकि उन्होंने टोटल डिस्टेंस मांगा है। तो इसके लिए हम पहला ट्राइंगल ले लेंगे इस तरफ का लेफ्ट हैंड साइड, इन ट्राइंगल CDA। CDA इसमें हमारे पास हाइट कितनी आ जाएगी, यानी कि परपेंडिकुलर 100 अपॉन बेस आ गया x आपके पास, तो P अपॉन B इट मीन्स क्या हो जाएगा, P अपॉन B इज tan। सो tan पे हमने एंगल देखना है 54 डिग्री। तो यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स की जरूरत पड़ेगी, और लिखा भी गया, क्वेश्चन में मेंशन किया गया। tan 54 पे अगर आप टेबल पे ये वैल्यू देखेंगे तो इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.3764। तो यहाँ से आप x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 100 अपॉन 1.3764। इट मीन्स मैं 4 जीरो और ऊपर लगा दूंगी तो नीचे का डेसिमल खत्म हो जाएगा। ये आ गया आपके पास वैल्यू। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 72 पॉइंट, यहाँ पर आपने कुछ एक्स्ट्रा डिजिट्स कैलकुलेट करनी है, 65329। अब सेकेंड हम ट्राइंगल ले लेंगे दूसरा इस तरफ का CDB। इन ट्राइंगल CDB ऑन राइट हैंड साइड सेम परपेंडिकुलर, इसमें कितना है 100 अपॉन बेस कितना आ जाएगा y, इट मींस tan, और tan में एंगल यहाँ पर कितना है 42 डिग्री। फ्रॉम द टेबल दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.9004। सो यहाँ से आप y की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो सिमिलरली ऐसी 100 अपॉन 0.9004 है। डेसिमल हटाने के लिए हम 4 जीरोज ऊपर और लगा देंगे तो नीचे का डेसिमल खत्म हो जाएगा, और 9004 से जब डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर है 111.06175। अब टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू x प्लस y। इट मीन्स हमने दोनों को प्लस करना है, तो 72.65329 प्लस 111.06175. After addition we will get the value 183.71 मीटर। बट लकीली उन्होंने आपसे क्या कहा है क्वेश्चन में, नियरेस्ट होल नंबर। तो होल नंबर में आपके पास डेसिमल पॉइंट तो हट जाएगा, तो होल नंबर के लिए आप इसको राउंड फिगर करेंगे 71 को, तो यहाँ 3 की जगह पे आपके पास +1 यानी 4 हो जाएगा। तो 184 मीटर आपके पास इसका करेक्ट आएगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है नियरेस्ट होल नंबर। तो नियरेस्ट होल नंबर आप लिख देंगे, तो नियरेस्ट होल नंबर पेपर में बहुत अच्छे से आपकी रियल नंबर्स की नॉलेज चेक की गई है कि आपको नेचुरल नंबर, रियल नंबर, रैशनल नंबर, डेसिमल नंबर, होल नंबर सबकी नॉलेज अच्छे से पता है या नहीं पता है। तो पेपर की सेटिंग बहुत अच्छे से की गई है। Coming to question number 8, part 1, solve the following in equation and write the solution set and represent it on the real number line. For 3 marks, you have to solve this question. So first part is 3 minus 2x is greater than and equal to x plus 1 minus x upon 3. And second part is equal to x plus 1 minus x upon 3 is greater than 2x अपॉन 5। चाहे तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं या एक को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 माइनस 2x आ जाएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, आप एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3x प्लस 1 माइनस x हो जाएगा। इट मीन्स 2x प्लस 1 अपॉन 3 आ जाएगा, और इस 3 को हम इस तरफ ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 माइनस 3 टू 6x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 हो जाएगा। 6x को इस तरफ ले जाते हैं, या इसी को इधर ले आएंगे तो माइनस 8x हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो 1 माइनस 9 मीन्स माइनस 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा स्टेप आ रहा है कि हमने डिवाइड करना है किसके साथ, क्योंकि मैंने x की वैल्यू को निकालना है तो मैंने माइनस 8 को माइनस 8 से डिवाइड करना है। जब भी हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा ये साइन जो है ये ऑल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी मेरा ये ग्रेटर देन की बजाय लेस देन हो जाएगा, यानी कि x इज लेस देन और इक्वल टू 1। हमारे पास यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी इसकी। सेकेंड वैल्यू के लिए हम दूसरी तरफ कैलकुलेट करेंगे, सेम यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे 3x प्लस, आप चाहें तो इस x को पहले ही ट्रांसपोज कर सकते हैं उस साइड में, बट सेम ही बात है, x 3x आ जाएगा प्लस 1 माइनस x है अपॉन 3 ग्रेटर देन 2x अपॉन 5 हो जाएगा। 2x प्लस 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन 2x अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाइंग 5 टू 10x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 6x। 6 को इस तरफ लाएंगे तो 4x इज ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5 अपॉन 4, और 5 अपॉन 4 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर हमने
10x था, 6x को इधर लेकर आए हैं, 5 को उधर लेकर गए हैं, तो माइनस का 5, -5/4 और माइनस में वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5/4 को डिवाइड करोगे 1.25, यानी इसका सोल्यूशन सेट कैसा बन जाएगा, x इज सच दैट x किससे बड़ा है और किससे छोटा है, x इज ग्रेटर देन, इसको थोड़ा सा आगे करके लिख लेते हैं, x इज, यहाँ पर आप देखिए ग्रेटर देन किससे आ रहा है, -1.25 से, तो ग्रेटर देन -1.25 हो जाएगा एंड लेस देन एंड इक्वल टू 1 हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा। और इसमें भी हम आगे क्या लिखेंगे, सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है, नहीं तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा आंसर चेंज हो जाएगा और हम जो सोल्यूशन सेट नंबर लाइन पे बनाएंगे वो भी शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि माइनस के नंबर से स्टार्ट हो रहा है, माइनस का 1.25 है, तो हम अगर चाहेंगे तो कहाँ से ले सकते हैं हम इसके अंदर 0 और -1 और -2, और इस तरफ में हमारे पास सिर्फ 1 तक जाना है, तो आप आगे 1 के आगे 2, एक एक्स्ट्रा डिजिट हमें लेनी ठीक रहती है, तो यहाँ पर हम 2 तक ले सकते हैं, आगे इसको एक्सटेंड कर देंगे, इधर भी एक्सटेंड कर देंगे। अब -1.258 मीन्स माइनस की साइड में -1 और -2 के बीच में होगा, अगर मैं मिडल लूंगी तो वो सिर्फ 1.5 होगा, -1.5, इन दोनों का भी हम मिडल लेंगे तो ये पॉइंट हमारा आएगा, और इसके नीचे इक्वल टू का साइन नहीं है, यानी यहाँ पर हमारे पास हॉलो सर्कल आएगा, चाहे तो उसके ऊपर आप वैल्यू लिख दीजिए -1.25, ये हमारी वैल्यू है, से लेकर हमारा 1 के नीचे तो हमारे पास इक्वलिटी का साइन भी है, तो 1 पर हमारे पास डार्क सर्कल आएगा क्योंकि उसके नीचे इक्वलिटी साइन है, और इन दोनों के बीच में आप पूरी लाइन को डार्क कर देंगे, पूरी लाइन आपने डार्क करनी है, चाहे तो आप इसको ऊपर भी बना सकते हैं, नंबर लाइन के ऊपर भी इसको दिखा सकते हैं, बट आपकी लाइन क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि रियल नंबर है इसलिए हम लाइन दिखा रहे हैं, अगर होल नंबर या नेचुरल नंबर होते तो हम सिर्फ डॉट्स दिखाते हैं नंबर्स के ऊपर, अभी रियल नंबर है तो हम पूरी लाइन दिखाएंगे, यहाँ हॉलो सर्कल और 1 पर हमारे पास कंप्लीट सर्कल, बिकॉज x इज ग्रेटर देन -1.25 एंड लेस देन 1 है। In second part, ABCD is a cyclic quadrilateral. It means all the four corners lie on the circle of this quadrilateral in which BC is equal to CD. ये में बहुत अच्छी हिंट दी गई है कि लेंथ ऑफ BC is equal to लेंथ ऑफ CD. तो इससे क्या हेल्प होगी, यहाँ पर जितना एंगल 43 का है इस तरफ भी हमारे पास 43 का ही एंगल आ जाएगा। आपको एंगल सम प्रॉपर्टी भी पता है और आपको ये भी पता है अपोजिट एंगल्स हैं, टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो अपोजिट हमने ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी करी हुई है, अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो ये एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, तो अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। और उसके अलावा गिवन चीजों में क्या है, EF इज ए टेंजेंट, EF आपको दिखाई दे रही है, टेंजेंट है A पॉइंट पे, एंड एंगल CBD 43 है, CBD 43 वैल्यू दी हुई है, और ADB 62 डिग्री दी गई है, तो ये वैल्यूज हमें, दो एंगल्स हमें गिवन है ऑलरेडी, यहाँ पर CBD की वैल्यू, CBD यानी कि ये 43 गिवन है और ये 62 भी गिवन है, हमें दो एंगल्स हमें गिवन है इसके अंदर, ADB 62 है। अब इसके अलावा हमने इसी से अभी करा कि यहाँ पर अब ये एंगल्स हैं और ये इक्वल साइड्स हैं, तो इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल आएंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये 43 तो ये भी 43 हो जाएगा, यानी हम इसको कैसे लिखेंगे, बिकॉज BC इज इक्वल टू CD, ये क्वेश्चन में गिवन है BC CD के इक्वल है, देयरफॉर एंगल CBD की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, CDB, और आप लिख सकते हैं यहाँ पर किसके इक्वल है दोनों की वैल्यू, 43 के, और रीजन में आप यही दे सकते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब हम इसके A पार्ट पे आ रहे हैं, A पार्ट में हमें फाइंड करना है एंगल ADC, ये पूरा एंगल, तो हमने बाई चांस यहाँ से 43 निकाल ही लिया। अब एंगल ADC किन दोनों का सम दिखाई दे रहा है आपको, ADB जो कि ऑलरेडी गिवन है, ADB, और साथ में क्या आ जाएगा, BDC, तो BDC की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है, ADB की वैल्यू 62 क्वेश्चन में गिवन है और ये 43 हो गई, तो 62 प्लस 43 आपके पास कितना आ जाएगा, 105 डिग्री, ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। B पार्ट में हमें फाइंड करना है एंगल ABD, इट मीन्स हमें ये एंगल फाइंड करना है। अब ये सामने आमने के अपोजिट एंगल्स हैं और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो सम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, तो हम इसमें लिखेंगे पहले रीजन क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री मीन्स उनका सम जो आएगा वो क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो हमारे पास कितने एंगल्स हैं इसमें ऑलरेडी, 62 है,
43 है, यहाँ पर ये भी 43 है। इट मीन्स हमें फाइंड कौन सा करना है, सिर्फ यही करना है जो उन्होंने पूछा ही है, एंगल ए बी डी। बस एंगल ए बी डी इज इक्वल टू मिलाकर इन सबका सम कितना है 180 डिग्री। तो जिसमें से हम ए बी डी की वैल्यू को जब इनको प्लस करके उधर लेके जाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 148। इट मीन्स 32 डिग्री हमारे पास यहाँ पर ये एंगल आ जाएगा। तो ए बी डी का आंसर 32 डिग्री आ गया। अब सी पार्ट के लिए उन्होंने पूछा है एंगल एफ ए डी। सी पार्ट एंगल एफ ए डी। अब एफ ए डी को थोड़ा ध्यान से देखिए, एफ ए डी कौन सा एंगल है हमारे पास, एफ ए डी जो टेंजेंट बना रही है ए डी कॉर्ड के साथ। अगर मैं ए डी को कॉर्ड ले रही हूं तो ये एंगल टेंजेंट और कॉर्ड ए डी बना रहे हैं, और यही ए डी कॉर्ड जब सर्कल पर कहीं पर भी मीट कर रही है, यानी कि सर्कल की बाउंड्री पर अपोजिट साइड में मीट कर रही है, तो ये कितने का एंगल बना रही है, हमने अभी ही कैलकुलेट किया कि ये एंगल 32 डिग्री है। इट मीन्स एफ ए डी कितना आएगा, जितना ए बी डी है, एफ ए डी इज इक्वल टू ए बी डी, और ए बी डी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 32 डिग्री, तो एफ ए डी की वैल्यू भी 30 आएगी। हम रीजन में क्या लिखेंगे, एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। ऑल्टरनेट मीन्स अपोजिट साइड में है, उसके कॉर्ड के एक तरफ टेंजेंट के साथ एंगल है, कॉर्ड के दूसरी तरफ वही कॉर्ड मीट कर रही है, एडी ही कॉर्ड मीट कर रही है बी पॉइंट पे, तो जितना एंगल वहां होता है उतना ही यहाँ पर भी होता है। तो ये भी 32 हो जाएगा क्योंकि वो 32 है। तो टेंजेंट ई एफ और कॉर्ड ए डी आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं कि ये मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। 3 ही पार्ट हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क फॉर ईच। पार्ट 3 अगेन फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 4 मार्क का क्वेश्चन। ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें सिर्फ ए बी में ही दिए गए हैं और बी और सी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वर्टिसेस इन ट्राइंगल ए बी सी के। पॉइंट डी लाइज ऑन बी सी सच दैट बी डी और डी सी को रेशियो 2:1 के रेशियो में है, तो इट मीन्स यहाँ सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। एंड एम जो है उसके कोऑर्डिनेट 6 और 0 दिए गए हैं। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। फाइंड, पहले ही आंसर में ए पार्ट में हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी निकालना है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी मींस मुझे यहाँ का निकालना है। तो ए पार्ट में डी के पॉइंट्स निकालने के लिए मुझे बी और सी दिया गया और इसका रेशियो दिया गया। चाहे तो आप इसको अलग से बना के कर लें कि हमने अलग से कर लिया कि ये 2 है और ये 1 का रेशियो है। यहाँ पर आपके पास बी पॉइंट है जिसकी वैल्यू -4 और 3 है, और इस तरफ आपके पास सी पॉइंट है जिसकी वैल्यू 8 और -6 है। 2:1 का रेशियो और हमने डी निकालना है। तो डी के कोऑर्डिनेट्स के लिए आपके पास एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई का कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी यहाँ पर आप पूरा लिखेंगे इज इक्वल टू, पहले हम एक्स का पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं। जब एक्स का पॉइंट कैलकुलेट करेंगे चाहे तो अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 आप लिख सकते हैं। फिर हमारे पास करना क्या है, ये हमारे पास एम एन है या फिर किसी बुक में m1 m2 भी है, आप उस सबको छोड़ दीजिए। m1 है, m2 है, m है, n है, k है, 1 है, उस सबको छोड़ के आप सिर्फ ये देखिए जो इस तरफ का रेशियो है वो उधर के पॉइंट के साथ आएगा और जो इस तरफ का रेशियो वो इधर के पॉइंट के साथ आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर 2 ले रही हूँ और x का पॉइंट निकाल रही हूँ तो पहले 2 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर किसको करेंगे 1 को करेंगे। इस तरह हमारे पास x का पॉइंट क्या है -4 है, और नीचे m + n यानी कि 2 + 1, ये मेरा x का पॉइंट आ गया। सिमिलरली y का पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो 2 को y2 के साथ करेंगे तो 2 है और y2 -6 है, प्लस 1 है हमारे पास इस तरफ रेशियो, और पॉइंट इधर है मेरे पास 3, और नीचे फिर से 2 + 1, तो अब क्या कितना आ जाएगा 8 और 2 16 -4/3, और दूसरी तरफ -12 + 3/3, इट मीन 16 - 4 12/3 और -12 और ये -9/3, इट मीन्स 4 एंड -3 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। ये हमारे पास डी का कोऑर्डिनेट्स आया 4 एंड -3, इट मीन्स हमारा फर्स्ट पार्ट ओवर हो गया। बी पार्ट के लिए हमें अगला करना है। बी पार्ट में क्या मांगा गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। अब ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, एम मिड पॉइंट दिया गया है और डी के कोऑर्डिनेट्स अभी ही हमने निकाले हैं, तो इट मीन्स हमें ए डी का मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाना है। अब ए और डी हमारे पास हैं, ए पॉइंट है और यहाँ पर हमारे पास डी पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास सिर्फ ए और बी दिए गए हैं। मिड पॉइंट यानी कि एम के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 6 और 0 दिए गए हैं, और डी का अभी हमने कैलकुलेट किया है 4 और -3 है ऑलरेडी। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कौन सा स्टूडेंट है जिसने सेक्शन फॉर्मूला किया है, मिड पॉइंट फॉर्मूला किया है, तभी तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है। तो यहाँ पर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास आंसर इसमें आएगा। इट मीन्स अगर मैं यहाँ का x1 ले रही हूँ तो ये x2 ले रही हूँ, यानी a + 4
और डिवाइडेड बाय 2, इधर से b लूंगी तो b, उधर का पॉइंट -3 और 2, और आंसर किसके इक्वल है, 6 और 0 के इक्वल, यानी कि a + 4 और 2 का आंसर जो है वो 6 के इक्वल है, और b - 3/2 का आंसर जो है वो 0 के इक्वल है। तो a + 4 = 6 × 2 12 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 12 - 4 यानी कि 8 आ जाएगी। इसी तरह से हम b - 3 के लिए सॉल्व करेंगे, 0 हो गया, b की वैल्यू 3 आ गई, यानी कि a के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए, 8 यानी कि a और 3 यानी कि b, तो 8 और 3 मेरे पास इसके पॉइंट्स आ गए, तो 8 और 3 a के पॉइंट्स आ गए। ये हमारा b पार्ट था। अब सी पार्ट के लिए हमने इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करनी है। आपने ए पार्ट कर लिया, ये हमारा ए पार्ट है, यहां से हमने ये बी पार्ट सॉल्व किया, और अब हम सी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। सी पार्ट के लिए जो कि मेजर पार्ट है 4 मार्क का, तो इट मींस 2 मार्क्स सी पार्ट के लिए हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू लाइन बीसी थ्रू एम, यानी वो जा एम से रही है और पैरेलल बीसी के है, तो बीसी के पैरेलल है, इतनी उसकी स्लोप कितनी होगी, जितनी बीसी की स्लोप होगी। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, बीसी की स्लोप को फाइंड करेंगे। तो स्लोप ऑफ बीसी, बीसी के पॉइंट्स आपको पता ही है, यहां से भी आप देख सकते हैं बीसी के पॉइंट है। आप स्लोप का फॉर्मूला भी आपको पता है, y2 - y1 x2 - x1। तो यहाँ y2 क्या है, -6, y2 - y1 क्या है 3, x2 क्या है 8, -x1 क्या है -4। तो -6 और -3 -9 हो जाएगा, और 8 + 4 12 हो जाएगा, -9/12 यानी कि -3/4 हमारे पास स्लोप आ गई। और क्योंकि ये बीसी की स्लोप है और ये जो गिवन लाइन दी गई है ये बीसी के पैरेलल है, इट मींस ये उसकी भी स्लोप है, तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन m जो है वो हमारे पास -3/4 आ गई। अब स्लोप आ गई तो हमें पॉइंट चाहिए, अब वो पास किससे कर रहा है, m पॉइंट से कर रहा है, यानी m पॉइंट पासिंग थ्रू m पॉइंट से जा रही है। m पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 6 और 0, तो अब क्या हो जाएगी लाइन ऑफ द इक्वेशन की, लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y - y1 = m x - x1। तो y माइनस y1 कौन है, ये हमारा x1 है और ये y1 है, तो y - y1 = m की जगह पे -3/4, x - x1 की जगह पे 6 आ जाएगा आपके पास। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को इधर ले जाइए, 4y हो जाएगा, 0 तो कैंसिल हो जाएगा, उधर खोलेंगे तो -3x और प्लस का 6 × 3 18 आ गया। तो ये आपके पास इक्वेशन आ रही है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3x को इस तरफ ही ले आएंगे, 3x + 4y = 18, या फिर -18 करके आप राइट हैंड साइड में ला सकते हैं। तो 3x + 4y = 18, ये हमारे सी पार्ट का आंसर आ रहा है, जो कि इक्वेशन ऑफ द लाइन है, पैरेलल टू बीसी है, पासिंग थ्रू m है, तो हमने y - y1 = m x - x1 का फॉर्मूला लगाना है। Question number 9, part 1. Use componendo and dividendo to find the value of x from the chapter ratio and proportion when x³ + 3x/3x² + 1 = 14/13। तो हमने componendo dividendo लगाना है, तो हम पहले ही लाइन में लिखेंगे applying componendo and dividendo। मेरा शॉर्टकट C&D ही होता है। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाने पर आपके पास क्या होता है, ये आपको पता ही है रूल इसका, x³ + 3x, इट मीन्स न्यूमरेटर हो गया प्लस डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर को आप ऊपर ले जाइए, ये आपका न्यूमरेटर बन गया। नीचे हमारे पास x³ + 3x और डिनोमिनेटर को माइनस कर देंगे, 3x² - 1। कभी भी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो सिर्फ एक साइड में नहीं लगता, अगर हमने LHS में लगाया है तो हमें RHS में भी उसको डेफिनेटली लगाना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यानी कि 14 + 13 कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 27, और नीचे आ जाएगा 1। अब इस तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फॉर्मूला आपका अलजेब्रिक फॉर्मूला है, किसका, a + b होल क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², इट मीन्स ये प्लस का फॉर्मूला हो गया। और नीचे अगर हम देखेंगे तो माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर ये दो साइन जब माइनस के हो जाएंगे तो 3a² b और 3 माइनस का b³ ये माइनस का b³ है -1, तो ये दोनों साइन जब माइनस के हो जाएंगे तो यही फॉर्मूला a - b होल क्यूब का हो जाएगा। इट मीन्स ये पूरा क्या हो गया, a मेरा यहाँ पर x है और b³ मेरा यहाँ पर 1 है, तो ये x - 1 का ऊपर वाला +1 का होल क्यूब हो जाएगा न्यूमरेटर, और नीचे डिनोमिनेटर x - 1 का होल क्यूब हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में आपके पास 27/1 है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स,
क्यूब रूट लेने का मतलब ही है कि हमारे पास क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यानी x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, और यहाँ पर ये किसका बन जाएगा, यहाँ पर आप चाहें तो एक स्टेप लिख सकते हैं 3 का क्यूब अपॉन 1 का क्यूब। तो जब आप क्यूब रूट लेंगे तो 3 और 1 रह जाएगा आपके पास यहाँ पर। अब अगला स्टेप है, यहाँ तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या एक पर और कॉम्पोनेंट डिविडेंड भी आप लगा सकते हैं। हम दोनों मेथड से कर लेते हैं। पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो कि सिंपली है, तो x प्लस वन किया आपने, इस तरफ से करेंगे तो 3x और -3 हो जाएगा, उस तरफ लेके गए तो आपके पास 2x हो गया, और ये कितना आ गया 1 + 3 यानी कि 4, और x की वैल्यू 4/2 यानी कि 2। तो x का आंसर आ गया 2। अगर यहीं पर मैं कॉम्पोनेंटो दोबारा लगाती हूँ, अप्लाइंग कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंड अगेन, तो मेरे पास न्यूमरेटर x प्लस वन है, डिनोमिनेटर प्लस x माइनस वन करूंगी, न्यूमरेटर x प्लस वन है, माइनस x प्लस वन करूंगी, इस तरफ राइट हैंड साइड में भी लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 + 1 और 3 - 1, यानी ऊपर में 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 2x, और नीचे आपके पास x कैंसिल आ जाएगा, 2 = 3 + 1 4, और नीचे आ जाएगा 2, और 2 कैंसिल हो गया, 2x = 4, तो x आपके पास आ जाएगा 4/2 यानी कि फिर से 2। तो x का आंसर हमारे पास आ रहा है 2, जो कि हमने करना था इसके अंदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर आप चाहो तो कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगाने के बाद आप एक बार और अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो लास्ट स्टेप बहुत सिंपल है, आप क्रॉस मल्टीप्लाइंग से भी कर सकते हैं। ईदर और दोनों स्टेप शो करने की जरूरत नहीं है। Second part from the chapter quadratic equation, it means word problem form quadratic equation. Total expenses of a trip for certain number of people is 18,000. If 3 more people join them, then the share of each reduces by 3,000 rupees. Take x to be the original number of people, ये हमें दिया गया है, form a quadratic equation in x and solve it to find the value of x. तो हमें यहाँ पर total expense दिया गया है. Now total expense कितना दिया गया, टोटल खर्चा कितना हो रहा है, ₹18,000। ये हमारा सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अब इसमें उन्होंने हमें क्वेश्चन में ही दे दिया, लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ पीपल। अगर हमें नहीं दिया होता तब भी हम यही लेते, लेकिन उन्होंने दिया ही है, तो ओरिजिनल नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया गया कि उसको आपने x एग्ज्यूम करना है। अगर मैं x मान रही हूँ कि ओरिजिनल नंबर ऑफ पीपल x हैं, तो आपको पता चल गया होगा यहाँ से, अगर ये चीजें दोनों हम लेते हैं तो शेयर ऑफ ईच पर्सन कितना आ जाएगा। यहाँ पर शेयर ऑफ ईच पर्सन इज, टोटल खर्चा हमारा 18,000 हुआ है, टोटल लोग x है, इट मीन्स एक व्यक्ति का शेयर 18,000/x आ जाएगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से वो क्या कह रहा है कि 3,000 रिड्यूस हो जाता है अगर 3 लोग और आ जाते हैं। तो पहला ओरिजिनल शेयर है हमारे पास 18,000/x, माइनस न्यू शेयर हमारे पास कितना आ जाएगा, 18,000 है। ऑब्वियसली शेयर कम ही होगा, अगर 3 लोग और आ जाएंगे तो शेयर कम हो जाएगा, इसलिए हम उसको इसी तरफ लिखेंगे। और बड़े कौन है, लोग बड़े हैं, तो पर्सन बड़े हैं या पीपल बड़े हैं, तो x + 3 यहाँ पर लिखेंगे, और दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है हमारे पास, 3,000 का डिफरेंस आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक में डिनोमिनेटर में दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास वही दोनों होते हैं, x और x + 3, और 18,000 को आप यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, ताकि यहाँ दोनों तरफ 1 रह जाएगा। तो 1 रह गया तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर x + 3 आ जाएगा, और उधर जाएगा तो -x आ जाएगा, इट मीन्स x कैंसिल हो जाएगा। तो कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है। 3,000 को हम नीचे लेके आएंगे, ये 3 zeros इस 0 से कट हो जाएंगी, और ये 3 6 18 हो जाएगा। इट मीन्स अब ये 6 × 3 भी 18 हो गया, और इसको यहाँ लेके जाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो इसको भी मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा आपके पास, x² + 3x, और उस तरफ मेरे पास क्या बच गया, 6 × 3 यानी कि 18। तो अगर मैं इसको राइट हैंड साइड से इधर लेकर आऊंगी तो कितना हो जाएगा, x² + 3x और -18 = 0। अब ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर हमारा दोनों एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट कितना बन रहा है, -18 है, और इंटू 1 करेंगे तो -18 है, यानी मुझे दो नंबर लेने हैं जिनका प्रोडक्ट -18 हो रहा है, लेकिन प्लस माइनस करने पर वो 3 आ रहा है। तो 6 × 3, तो 6 × 3 जो है, 6 × 3 18 हो जाएगा, और बड़ा नंबर प्लस का साइन है, इट मींस मैं प्लस का 6 लगाऊंगी। तो इसको हम अगर स्प्लिट कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर स्प्लिट करने के बाद x² प्लस पहला क्या होगा 6x, फिर क्या होगा -3x -18 = 0।
अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 आ जाएगा, उन दोनों में कॉमन लेंगे -3 है, x प्लस 6 आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर x माइनस 3 और x प्लस 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि 6 तो हो नहीं सकता, माइनस में तो पर्सन होने नहीं वाले हैं, तो x इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर है। यानी कि ओरिजिनल नंबर ऑफ पीपल जो हमने x एज्यूम किया था वो हमारे पास आ गया कि 3 लोग थे। अब इस क्वेश्चन को हम पेपर में छोड़ तो सकते हैं, पर अगर आपके पास टाइम है तो हम चेक भी कर सकते हैं। तो ओरिजिनल शेयर कितना था, अब देखिए आप 18,000 का टोटल खर्चा था और 3 लोग थे, यानी कि 6,000, यानी कि टोटल उनका 6,000 का शेयर आ रहा था। अगर 3 लोग और आ गए, यानी कि 18,000 का ही टोटल खर्चा है अगर, और इसमें 3 लोग और आ गए, यानी कि 3 प्लस 3 यानी कितना हो गया 6, तो अब शेयर कितना हो गया 3,000 का, 6 3 18, तो 3,000 का शेयर हो गया। यानी कि दोनों में 6,000 3,000 में 3,000 का डिफरेंस उसने दिया था कि हमारे को 3,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप इक्वेशन सही है या नहीं है इसको आप चेक भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं तो चेक करने के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी अगर आपके पास पेपर में एक्स्ट्रा टाइम बच गया है। तो रिविजन के टाइम में आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। Third part is from chapter Circles Construction. Using ruler and compass only, construct angle ABC is equal to 60 degree. AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हमें दिया गया और BC 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपने एंगल ABC बनाना है। एंगल ABC के लिए आप पहले AB बनाएंगे। AB की लेंथ आपको 6 सेंटीमीटर दी गई है। ये मैं अप टू द स्केल नहीं बना रही हूँ, मैं आपको सिर्फ मेथड बता रही हूँ। AB हमें 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हमने AB 6 सेंटीमीटर मार्क कर ली, क्योंकि एंगल ABC पे बनाना है इसलिए हमने B को यहाँ रखा। और यहाँ आपने 60 डिग्री का एंगल बनाना है। 60 का एंगल बनाने के लिए आपको पता ही है, आप पूरा 90 का बनाते हैं, फिर यहाँ से ऐसे कट कर देते हो तो 60 का एंगल बन जाता है। तो यहाँ से आपके पास 60 का एंगल बन जाएगा। आप कंपास की मदद से बनाएंगे सिर्फ, तो ये 60 का एंगल बन गया। हम अज्यूम करेंगे 60 का एंगल यहाँ तक आ गया। अब इसकी भी हमारे को लेंथ दी गई है, BC हमारे को 5 सेंटीमीटर दिया गया, तो 5 यहाँ पर रखकर आप 5 कट करेंगे तो यहीं तक आपका C आएगा, यानी ये ट्राइंगल आपका जहां तक 5 है वहीं तक कट करेगा। तो BC की वैल्यू 5 हमें दी गई है। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा ट्राइंगल ABC बन गया, जिसमें ये एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब A पार्ट में इसके अंदर हमें बोला गया है, A पार्ट है construct the locus of all the points which are equidistant from AB and BC। अब ये पार्ट जो है ये है हमारा चैप्टर लोसाई से। लोसाई जो कि पिछले ईयर्स में कट हो गया था लेकिन इस ईयर में ऐड किया गया है और उसको कंस्ट्रक्शन के साथ मिलाकर, जो कि होता ही है, मिक्स करके क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको लोकस वाले चैप्टर को भी अच्छे से करना है, तभी आपको लोसाई का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो यहाँ पर अभी पहले पार्ट में पूछा गया कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एंड BC। अब AB हमारी ये साइड है और BC हमारी ये साइड है। दो साइड जब हम लेते हैं, यानी कि एंगल की दो आर्म्स लेते हैं, तो उनसे जो पॉइंट इक्विडिस्टेंट होता है वो कहाँ लाई करता है, उसी एंगल की एंगल बाइसेक्टर पे। तो अब एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंपास रखेंगे, यहाँ आर्क लगाएंगे, यहाँ करेंगे और यहाँ से हम इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए, यानी 30 डिग्री पे बाइसेक्ट होगा, ये 30 डिग्री बाइसेक्ट करता हुआ हम एंगल बाइसेक्टर बना लेंगे। एंगल बाइसेक्टर पे जो भी पॉइंट होगा, मान लेते हैं हम यही पॉइंट आ रहा है, जो भी पॉइंट आएगा एंगल बाइसेक्टर पे वो इन दोनों आर्म से इक्विडिस्टेंट होगा। तो यहाँ पर हम इसको कोई नाम दे देते हैं, मान लेते हैं हमने इसको BD दे दिया, तो यहाँ पर हम BD लिख देंगे। BD हमारी क्या है, BD इज द एंगल बाइसेक्टर एनी पॉइंट ऑन BD। एनी पॉइंट ऑन BD हमारा जो होगा वो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। तो रिक्वायर्ड पॉइंट लाइज ऑन BD, आप ऐसे करके लिख सकते हैं। यहाँ पर चाहे तो चलो मैं चेंज कर देती हूँ, रिक्वायर्ड पॉइंट, यानी रिक्वायर्ड पॉइंट उसने क्या बोला, जो इक्विडिस्टेंट होगा। तो रिक्वायर्ड पॉइंट लाइज ऑन BD। तो आर्म AB और BC का जो हम मिड पॉइंट अगर देखना चाहते हैं तो वो एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा। अब सेकेंड पार्ट पे आ रहे हैं, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। A और B ये दो पॉइंट हैं, इन दोनों से इक्विडिस्टेंट होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। A और B का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम A पर रखेंगे, आर्क लगाएंगे ऊपर, आर्क लगाएंगे नीचे, B पर रखेंगे, आर्क लगाएंगे ऊपर, आर्क लगाएंगे नीचे, और यहाँ से हम इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो हमारा रिक्वायर्ड होगा इस दोनों के पॉइंट्स के बीच में। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, ईच पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, चाहे तो आप बाइसेक्टर का कोई नाम दे सकते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम
A एंड B। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको हिंट देना चाहूंगी, जब भी आपको दिया जाता है कि कोई पॉइंट इक्विडिस्टेंट है दो लाइंस से, तो जब दो लाइंस से हम लेंगे तो वो हमारा पॉइंट आएगा, और जब हमें पॉइंट दिया गया A और B तो हमारे पास लाइन आएगी, और वो लाइन कौन होगी? एंगल बाइसेक्टर। तो एक पॉइंट ध्यान रखिए, जब पॉइंट दिया गया है तो आपके पास लाइन आनी है, तो वो लाइन एंगल बाइसेक्टर भी हो सकती है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो सकती है, पर जब पॉइंट है तो लाइन में आंसर होगा। और जब लाइन बोला, उसने आर्म बोला था ना, ए बी और बी सी, यानी लाइंस दी थी, तो लाइंस दी थी तो उसका आंसर पॉइंट पे लाई करेगा। तो पॉइंट दिया तो लाइन है, और लाइन दिया तो पॉइंट पे हमें फोकस करना है, तो वहीं से आपको आंसर अपने आप दिखाई दे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए और बी पॉइंट है, तो हमने लाइन जो ड्रॉ करी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। आप चाहे तो आप इसको ई और एफ ऐसे नाम दे सकते हैं, तो ईच पॉइंट लाइन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पर आप ई एफ मेंशन कर दीजिए, और पीछे वाले में हमने उसको बी डी मान लिया था। अब हमारा मेन पॉइंट आ रहा है, मार्क द पॉइंट विच सेटिस्फाइज बोथ द कंडीशन ए एंड बी एज पी। अब वो पॉइंट कहाँ है जो इन दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहा है? तो एंगल बाइसेक्टर अगर है तो वो बी डी, यहाँ एंगल बाइसेक्टर इन दोनों आर्म्स के बीच में है, और अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर रही हूं तो वो ए और बी पॉइंट के बीच में है। अब जहां ये दोनों पॉइंट्स मीट कर रहे हैं, इट मींस इस पॉइंट पे जहां हमारे ये दोनों पॉइंट्स मीट कर रहे हैं, वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है लोकस का। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने किससे दिखाना है? उसने सी पॉइंट में बोला है मार्क द पॉइंट एज पी। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम डायग्राम पे ही दिखाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एट P। ये हमारा P पॉइंट आ जाएगा, जहां पर हमारे दोनों लाइंस मीट कर रही हैं, ये हमारा P पॉइंट है। अब उसके बाद हैज कंस्ट्रक्टेड सर्कल विद सेंटर P एंड पासिंग थ्रू AB। तो अब क्योंकि इनका सेंटर आ गया, अब आप कंपास का टिप यहाँ पर रखिए और पेंसिल आप A पर रखिए या B पर रखिए। आप प्रेफरेबली B पर रखिए, क्योंकि हमारे पास एंगल B की साइड में ही है, तो आप B पर रखेंगे तो आपके पास आप PB को रेडियस, तो PB को रेडियस लेते हुए आप सर्कल बनाइए। आपका सर्कल तीनों पॉइंट से टच करता हुआ ही जाएगा, ऑटोमेटिकली वो सर्कल, इसका पी बी को रेडियस लेना है, पी पर हमने टिप को रखना है, तो ये सर्कल हमारा रिक्वायर्ड सर्कल होगा। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं, दिस इज अवर रिक्वायर्ड सर्कल हैविंग सेंटर एट पी एंड रेडियस एज पी बी। Coming to last question number 10, part 1, using remainder and factor theorem, factorize completely the given polynomial is 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। तो अभी फैक्टराइज कंप्लीट करने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि पहला फैक्टर कहाँ है, और ऊपर हमारे पास मैक्सिमम जो है वो 3 है यहाँ पर डिग्री, तो इट मीन्स हमारे पास 3 फैक्टर्स आने हैं। तो सेकंड और थर्ड फैक्टर तो बाद में आएगा, पहले फर्स्ट फैक्टर के लिए हम चेक करेंगे। तो पहले हम 1 पे चेक करते हैं कि हमारे पास आ पा रहा है या नहीं आ रहा। तो 2 1 क्यूब माइनस 9 1 स्क्वायर प्लस 7 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 2 माइनस 9 प्लस 7 प्लस 6 नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स 1 हमारा फैक्टर नहीं है। और माइनस में भी आप चेक कर सकते हैं, यहीं पर बस आप माइनस कर दीजिए, आप माइनस और माइनस कर देंगे, यहाँ पर 7 पे भी माइनस आ जाएगा, तो आप देख लो ये एक्सीड कर जाएगा। तो हमें उसके लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली 2 पे चेक करते हैं। आप 2 पर कितना हो जाएगा? 2 क्यूब माइनस 9 2 स्क्वायर प्लस 7 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 2 क्यूब 8 8 इंटू 2 16 2 स्क्वायर 4 9 4 36 7 2 14 एंड प्लस 6 कितना हो जाएगा? 36 हो गया, 14 प्लस 6 20 और 6 36 माइनस 36 इक्वल टू 0। यानी F2 हमारा फैक्टर है। इट मीन्स हमारे को फैक्टर, यानी 2 पे फैक्टर आया, हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो x 2 पे हमारे पास आ गया। अब हमें x माइनस 2 से इसको डिवाइड करना है, तो हम इसको बीच में रखते हुए x माइनस 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो 2x क्यूब है माइनस 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, इसको बीच में रखते हुए आप फर्स्ट फैक्टर जो भी आपने कैलकुलेट किया है उसके साथ डिवाइड कीजिए, x माइनस 2। तो 2x क्यूब को आप x से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर अगर जिन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल आप नया कर रहे हैं तो आप हर एक नंबर को लिखिए, जैसे आप लिखिए कि 2x क्यूब है और नीचे आप इसको x के साथ डिवाइड कीजिए, आपको दिख जाएगा कि 2x स्क्वायर आ रहा है। प्रैक्टिस के साथ आप खुद ही कर लेंगे। तो 2x स्क्वायर आ रहा है, 2x स्क्वायर को दोबारा x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब आ जाएगा, 2x स्क्वायर को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे, पहला नंबर कट जाएगा, दूसरा नंबर हमारे पास माइनस 5x
स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 आ जाएगा। माइनस 5x स्क्वायर को फिर दोबारा आप ऐसे लिखिए, माइनस 5x स्क्वायर को x से करेंगे कट जाएगा तो माइनस का 5x आएगा। तो माइनस 5x स्क्वायर दोबारा जब करेंगे और माइनस माइनस प्लस का 10x हमारे पास अगला आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे, पहला नंबर कट जाएगा, यहाँ पर माइनस 3x और प्लस 6 आ जाएगा। फिर आप माइनस 3x को लिखिए और x के साथ करिए, x कैंसिल हो जाएगा यानी कि माइनस 3 आ जाएगा। माइनस 3 को दोबारा करेंगे, माइनस 3x और माइनस क्या आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा यानी कि पूरा कट जाएगा। यानी कुल मिलाकर हमारे पास जो दूसरा क्वाड्रेटिक इसमें से निकल रहा है वो है 2x क्यूब। एक फैक्टर तो x माइनस 2 आ गया, अब बाकी का हमारे को यहाँ से निकालना है। हम इस क्वाड्रेटिक को मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे। अब कितना मिडिल टर्म स्प्लिट होकर कितना होना चाहिए, हमारे एक्सट्रीम्स क्या हैं 2 और 3, यानी कि हमारे को प्रोडक्ट कितना चाहिए 3 इंटू 2, माइनस का 6 चाहिए, माइनस का 6 प्रोडक्ट चाहिए और माइनस 5 हमारा प्लस माइनस करने पर आना चाहिए, यानी कि 3 इंटू 2 हो गया। और 3 इंटू 2 को अगर हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 5। लेकिन आप उसमें देखिए कि आपके पास यहाँ पर भी माइनस आ रहा है, यानी मुझे माइनस का ही 6 चाहिए। तो इसका मतलब मुझे 6 और 1 को लेना है, यानी कि माइनस का 6x प्लस का 1 और माइनस 3। पहले दो फैक्टर्स लेंगे, पहले दो में नंबर्स में देखेंगे तो 2x कॉमन है, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन है, x माइनस 3, यानी कि x माइनस 3 एक फैक्टर है, 2x प्लस एक और फैक्टर है। यानी कुल मिलाकर हमारी 3 डिग्री का मतलब 3 फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं। पहला फैक्टर हमारे पास x माइनस 2 आया है, सेकेंड फैक्टर x माइनस 3 आया है, थर्ड फैक्टर 2x प्लस 1 आया है। इसका मतलब ये सारे हमारे फैक्टर्स आ गए हैं। इट मीन्स हमने उसको कंप्लीटली फैक्टराइज कर दिया है। सो द गिवन पॉलिनोमियल इज नाउ कंप्लीटली फैक्टराइज्ड। Second part, each of the letter of the word housewarming is written on cards। यानी हमने कितने कार्ड बनाए हैं, आप काउंट कीजिए टोटल कितने कार्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी टोटल मिलाकर मेरे पास 12 कार्ड्स हैं। जो 12 कार्ड्स हमने बनाने हैं और डालने हैं। तो 12 कार्ड्स हमने डाले हैं, इज रिटन ऑन कार्ड्स एंड पुट इन ए बैग। इफ अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, हमने एक कार्ड निकाला है फ्रॉम द बैग आफ्टर शफलिंग, what is the probability that the letter on the card is a vowel। तो वॉवल कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब यहाँ पर टोटल मैच कीजिए कि आपके पास यहाँ से वॉवल की प्रोबेबिलिटी कितनी बन रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवल हम सब में एक ही फॉर्मूला इसमें प्रोबेबिलिटी में हम यूज करते हैं, नंबर ऑफ, पहले में आ जाएगा फेवरेबल आउटकम्स और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। हाँ जी, तो अब कितने बन रहे हैं यहाँ पर आप चेक कीजिए, फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने, यानी कि वॉवल कितने हैं, ओ वॉवल है, ए ई आई, पहले एक बार आप लिख लें, ए ई आई ओ और यू, ये आने चाहिए। अब यू भी है आपको दिख रहा है यहाँ पर, ई भी है, ए भी है, आई है और कोई नहीं है। तो 1 2 3 4 5 यानी कि 5 आपके पास बन रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए आपके पास, आई है, ए है, ई है, ए ई आई ओ यू, पांचों वॉवल्स आ रहे हैं और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा था तो हमारा उसमें प्लस होता। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास 5 और डिवाइड बाय टोटल कितने हमने देखे थे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इस केस में 12 है, क्योंकि 12 ही कार्ड्स है हमारे पास। तो 5/12 हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट के लिए हमें पूछा गया है नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड स्विंग, स्विंग SEWING, इसके कौन से वर्ड उसके अंदर आ रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। क्या है प्रोबेबिलिटी, स्विंग वर्ड में कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये सारे ही इसके अंदर हैं, SEWING, सारे के सारे अल्फाबेट इसके अंदर हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है, पूरे वर्ड उसके अंदर आ ही रहे हैं। तो नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड स्विंग इसके अंदर आ रहे हैं, सारे के सारे अल्फाबेट आ ही रहे हैं उसके अंदर। प्रोबेबिलिटी क्या है कि जब मैं वो 12 में से कार्ड निकालूं तो ये 6 कार्ड हो ही सकते हैं वो वाले, तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/12 यानी कि 1/2 हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इस केस में। थर्ड में नॉट अ लेटर फ्रॉम द वर्ड वियर, WEAR, ये नहीं होना चाहिए, तो उसमें से वो देख करके कैंसिल कर देंगे। तो टोटल 12 थे, उसमें से ये 4 अल्फाबेट, पहले ये चेक करें कि उसमें है भी है कि नहीं है। WEAR, W भी है, E भी है,
ए भी है और आर भी है, तो ये चारों अल्फाबेट हैं और इन चारों को हमने नहीं लेना। टोटल कितने हैं? 12 है। तो 12 में से इन चार को हम माइनस कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास? 8 हो गई। तो 8/12 हमारे पास आंसर हो जाएगा, यानी कितना हो गया? 4 के टेबल पे कट रहा है 2/3। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 5/12, सेकंड का 1/2 और थर्ड का 2/3 हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे। Last part, third from chapter reflections. Use graph sheet for this question। और 2 सेंटीमीटर को आपने 1 यूनिट लेना भी है और अपनी ग्राफ शीट पे दिखाना भी है। जो पिंक वाली ग्राफ शीट आपको मिलती है उसमें 2 सेंटीमीटर को आपने 1 यूनिट जितना दिखाना है, मीन्स आपका बड़ा बड़ा यूनिट होगा ताकि डायग्राम आपका क्लैरिटी ले पाएगा। अब इसमें हमने ए पार्ट में प्लॉट करना है ए पॉइंट, और ए के कोऑर्डिनेट्स 1 और 2 दिए हैं, तो एक्स पे 1 और वाई पे 2। इट मीन्स हमारा ए पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास? ए पॉइंट के 1 और 2 कोऑर्डिनेट्स हैं। बी पे 1 और 1, तो 1 और 1 मीन्स मेरा एक्स का भी 1 है और वाई का भी 1 है, तो ये मेरा बी पॉइंट आ जाएगा। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन रहे हैं 1 और 1। और इसके बाद सी पे है 2 और 1, तो 2 आ जाएगा इसका और ए का आ जाएगा, यहाँ से वाई से 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? सी का 2 और 1, तो ये मेरा सी पॉइंट हो जाएगा। तो ए बी सी हमारे पास 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। ए बी सी के लिए चाहो तो आप बाद में एक बार अपना टू ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, और उनके कोऑर्डिनेट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। अब हमारा बी पार्ट आता है रिफ्लेक्ट ए बी सी अबाउट वाई एक्सिस। इसको वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट करना है, मतलब हमने एज्यूम करना है कि मिरर वाई एक्सिस पे है। तो वाई एक्सिस से जब हम करेंगे तो रिफ्लेक्ट होकर वो इस क्वाड्रेंट में यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट करने के बाद ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपके पास? ए में जब हम वाई से करेंगे तो हमारे पास वाई का पॉइंट वही रहेगा, एक्स का पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1, ए का हमारे पास आ जाएगा -1 और बी का मतलब वाई का हमारे पास 2 ही रहेगा, और इसको रिफ्लेक्ट करने के बाद हमने नाम देना है ए डैश। सिमिलरली जब हम बी को करेंगे तो हमारे पास क्या था यहाँ पर? 1 1, लेकिन यहाँ पर क्या बन जाएगा? -1 और फिर 1, -1 और 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट बन गया -1 और 1, और इसका नाम हमें दिया गया है बी डैश। और सी डैश के लिए हमारे पास यहीं पर पॉइंट आएगा इसके ऊपर, क्योंकि वहां पर 2 1 था, यहाँ पर -2 और 1 बन जाएगा, तो ये सी पॉइंट हो गया -2 और 1 के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट्स जो आ रहे हैं, ए डैश, बी डैश और सी डैश, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए, ए डैश बी डैश सी डैश। नाउ इन सी पार्ट रिफ्लेक्ट ऑल दीज पार्ट्स, जो भी आपने पॉइंट्स अभी मार्क किए हैं अबाउट एक्स एक्स से। तो अब हम मिरर को एज्यूम करेंगे कि एक्स एक्स पे मिरर है, यानी कि वो नीचे आ जाएंगे, हमारे थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट आ जाएंगे। नेम देम एज, फिर हम उनको ए डबल डैश, यानी इधर वालों को जब हम लेंगे नीचे तो ए डबल डैश। अब जब हम एक्स एक्सिस से करेंगे तो हमारा एक्स का पॉइंट सेम रहेगा, वाई का पॉइंट चेंज होगा। तो ए डबल डैश के लिए मेरा पॉइंट था 1 2, तो हमारा यहाँ पर पॉइंट कितना बन जाएगा? 1, और वाई का बन जाएगा -2, मेरा वो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 1 और -2, 1, -2। ये हमारा इन पॉइंट्स के उन्होंने नाम दिए हैं ए डबल डैश, तो ये पॉइंट हमारा आ गया ए डबल डैश के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है बी डबल डैश, तो बी डबल डैश हमारा 1 1 पे था, तो 1 और -1 पे हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट आ गया बी पे, और इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा 1 एक्स का और -1 वाई का। इसी तरह से सिमिलरली हम सी का लेंगे, तो सी का यहाँ पर था 2 और 1, तो एक्स का तो चेंज नहीं होगा और वाई का चेंज हो जाएगा, तो 2 और -1, ये हमारा सी पॉइंट, सी डैश। अभी हमने ये डबल डैश लिए हैं, ए डबल डैश, बी डबल डैश, सी डबल डैश। इसी तरह से हम यहाँ पर भी नीचे लेंगे तो हमारे पास ट्रिपल डैश में आ जाएगा। ए का ट्रिपल डैश जो हम नीचे लेंगे तो -1 और 2 था, एक्स का पॉइंट चेंज नहीं होगा, इसका चेंज हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा? इस पॉइंट पे आ जाएगा ए ट्रिपल डैश, और इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? -1 है एक्स का और -2 है हमारे पास वाई का, तो -1 और -2 आ जाएगा। ऐसे ही जब हम बी का लेंगे तो बी का पहले था -1 1, और अब कितना हो जाएगा? वो -1 है हमारे पास, ये पॉइंट है बी -1, और इसका जब हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? -1 के बाद एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करने के बाद दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, यानी वो पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा -1, -1, और ये आंसर किसका है? बी ट्रिपल डैश का है। ऐसे ही जब हम सी का लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये सी है -2 और 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? -2 और -1, तो ये हमारे पास आ गया सी ट्रिपल डैश। तो हमारे पास कुल मिलाकर अब ये सारे पॉइंट्स आ गए हैं। अब लास्ट हमने इन सबको आपस में मीट करना है जिस सीक्वेंस में उन्होंने हमें दिया है, क्योंकि मैं फ्री हैंड बना रही हूँ, आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आपकी लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट आएंगी। स्टार्ट हमने करना है ज्वाइन ए बी,
तो ए बी से स्टार्ट करेंगे, ए से बी पर आएंगे, बी से सी पर आएंगे, सी से सी डबल डैश पे जाना, यानी हम नीचे जाना है, 2 को क्रॉस करते हुए सी डबल डैश पे आ जाएंगे, फिर आप बी डबल डैश पे आ जाएंगे और फिर ए डबल डैश पे आ जाएंगे। ए डबल डैश के बाद आपको सीधा ए ट्रिपल डैश पे आना है, यानी कि आप -2 को क्रॉस करते हुए इस तरफ आ जाएंगे, तो ये आपका ए ट्रिपल डैश हो जाएगा, फिर आपका बी ट्रिपल डैश हो जाएगा, फिर आपका सी ट्रिपल डैश हो जाएगा, उसके बाद आप सी ट्रिपल डैश के बाद सी पे ही आ जाएंगे। यहाँ का जो ऊपर का सी डैश हमने जो लिया था, तो सी डैश को करने के लिए हमें -2 को यहाँ से क्रॉस करना है, हम सी डैश पे आ जाएंगे, फिर बी डैश पे आ जाएंगे, फिर ए डैश पे आ जाएंगे और फिर हम इस 2 को क्रॉस करते हुए उसको मीट करवा देंगे ए के साथ। तो ये हमारी फिगर बन जाएगी। इस केस में ये क्लोज्ड फिगर बन रही है, आप सबको दिखाई दे रहा है। अब हमें करना क्या है, इसका नाम देना है। तो नाम देने के लिए हमें इसके साइड्स काउंट करनी है। तो किसी भी एक तरफ से आप साइड काउंट करनी स्टार्ट कर देते हैं। सपोज हम इसकी ये साइड मान लेते हैं कि ये हमारी फर्स्ट साइड है, तो फर्स्ट साइड से स्टार्ट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इट मीन्स इसकी 12 साइड हैं और 12 साइडेड पॉलीगन आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। और एग्जैक्टली कहेंगे तो डोडेकागन, यानी कि DO डोडेका, DECAGON। अगर नाम याद रहे, क्योंकि उसने पूछा ही नहीं है आपसे, उनको भी पता है कि हम 8 9 तक लेते हैं, इससे ज्यादा बड़ा नहीं लेते हैं, तो आप इसको 12 साइडेड पॉलीगन के नाम से देंगे। सिर्फ पॉलीगन नहीं, क्योंकि पॉलीगन के कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं वो भी देना जरूरी है। तो आप लिख सकते हैं इट इज ए 12 साइडेड पॉलीगन। हालांकि इस क्वेश्चन में उसने आपसे मांगा ही नहीं है, सिर्फ आपको क्या बताया गया है कि मेक इट ए क्लोज फिगर, नाम नहीं मांगा गया, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 मार्क में आया है। जब लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में था तो ये 5 मार्क्स में था, और उसके नहीं शायद 6 मार्क्स में था, और उसमें आपसे नाम भी पूछा गया था और उसकी फिगर कुछ हमारी ऑक्टागन टाइप की आ रही थी। ये फिगर थी आपकी लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में, आपके पास ये फिगर दी गई थी। इसकी भी नंबर ऑफ साइड्स आपने काउंट करनी थी और उसके बाद आपको फिगर का नाम भी देना था कि क्या नाम बन रहा है फिगर का। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये 10th क्वेश्चन भी खत्म होता है। विद दिस आई कंक्लूड माय टुडेज वीडियो। होप आई हैव हेल्प्ड यू टू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस गिवन इन द स्पेसिमेन पेपर। ऑल्दो ब्रेक थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन सक्सेसफुली मैंने आपको दिखा दिया है। मे भी किसी क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन में कोई एरर रह जाएगी, तो आई होप आप उसको शांति से रेक्टिफाई करके मुझे बता देंगे कमेंट सेक्शन में, और मैं उसको ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और प्लीज देखिए, मैंने सबसे पहले वीडियो आपको दी है, स्पेसिमेन पेपर का सोल्यूशन सबसे पहले दिया है, लेकिन मेरे व्यूज कम रह जाते हैं क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स कम हैं। तो प्लीज थोड़ा सा मेरी हेल्प कीजिए। जिनके सब्सक्राइबर्स ज्यादा हैं उनकी वीडियो बाद में भी मार्केट में आती है, तब भी आप देखते हैं कि उनके व्यूज काफी ज्यादा हो जाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम ऑल्सो। आपकी सपोर्ट मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए एनकरेजमेंट देती है, तो ट्राई टू हेल्प मी। थैंक यू।